All right, friends, let us talk about parliamentary committee. So it's an important topic. It has yielded some questions in the past. So parliamentary committee are what? They are essential for the effective functioning of the parliament. अब इसमें होता क्या है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज का काम होता है स्क्रूटेनाइज करना, टू स्क्रूटेनाइज एंड एक्सट्रैक्ट अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. ओके, so they are there for extracting accountability from the executive. Fine. And what do? They basically help the parliament to tackle the complex nature of the governance process. Okay. And it recognizes the fact that parliaments has limited time and expertise to scrutinize all legislative matters. See, MPs and MLAs are what? If we talk about MPs, rather, let us talk about MPs. Are they expert in all the fields? The answer is no. Okay, many of them are not even 8th pass, 10th pass, 12th pass. Okay, many of them are illiterate. Some of them are graduate, but what are they? BA, okay, Bachelor of Arts. So how are they going to understand the BTech? जो BTech वाले समझ सकते हैं जिसको. How are they going to understand AI? So in that case, what we do have is these parliamentary committees where they can seek expert help, expert suggestions, and then they can make an opinion, an informed opinion. Okay. So Constitution of India, it references these committees, but it leaves specifics about their composition, tenure, and function to the two houses of parliament. So is there is that कि constitution में reference है committees का कि parliamentary committee shall be there, okay, but it does not talk about the composition, tenure, and function. So these committees, they are made on the based on the rules of the two houses of parliament. The constitution merely talks about the presence of these committees, but their composition, their formation, and all the other thing, it has to be from the rules of the two houses of parliament. So a parliamentary committee का characteristic क्या होता है? So it is characterized by that it is appointed or elected by the house or nominated by the speaker and chairman. So how you can make a committee? Either you can appoint it, or there can be an election. By what kind of election? Are we talking about direct election? No. Proportional representation, single transferable vote. That kind of election, or we are talking about nomination. So either there can be an appointment, or there can be an election, or there can be a nomination, depending upon different type of committee. See, all the committee equally important? There are some committees which are more important than the others. So वहां पर हम क्या देखेंगे? Elections देखेंगे. There are certain committees which they are for housekeeping, they are for library, something like this. तो वहां पर जो है, you don't require the stringent selection criteria. Anybody can go and anybody can work in that committee. Okay, so if there are different kinds of committee, and then it operates under the direction of the speaker and chairman. Okay, all the committees, there are committees in the Lok Sabha. So Lok Sabha committee, they will operate under the directions of the speaker. In the Rajya Sabha, it shall operate under the direction of the chairman. Okay, and then it presents its report to the house or to the speaker or chairman. All right. So after the committee is done, so committee की जो report है वो speaker या chairman साहब को दी जाएगी, and the speaker and chairman, they will keep, okay, they will be keeping this in front of the house. Okay, so इस तरीके से जो है हम देखेंगे. All right. अब जो है, okay, अब जो है, एक मुझे एक बात बताए कि ये कमिटी का क्या जो रिपोर्ट्स होता है, इज इट मैंडेटरी टू एक्सेप्ट देम? इज इट मैंडेटरी? Yes, presenting it to the presiding officer, correct. So it is not mandatory to accept them. All right. Anyways,
Consultative committees are also there. Okay, and they consist of parliament members, but they do not qualify as parliamentary committees as they do not meet the above criteria. Consultative committee होता क्या है? Consultation के लिए, merely consultation. Okay, and it is supported by a secretariat provided by either the Lok Sabha or the Rajya Sabha. Who? The parliamentary committee, the parliamentary committees, they are supported by a secretariat which is provided by either the Lok Sabha or the Rajya Sabha. Okay, बिकॉज सेक्रेटेरियल आपको समझ में आया, विप में भी हमने डिस्कस किया था, फोन वगैरह की जरूरत होती है, यू रिक्वायर फोन, यू रिक्वायर एन ऑफिस स्पेस, यू रिक्वायर स्टेशनरी, यू रिक्वायर टू समन पीपल, सो यू रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। पहले फैक्स वगैरह की भी जरूरत होती थी, टेलीग्राम की जरूरत होती थी। ओके, सो ये सारी चीजें जो है आपके सेक्रेटेरियल फैसिलिटीज में आ जाती है। ओके, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, so parliamentary committees are broadly classified into two types, that is standing committee and ad hoc committee. Okay, so किस इसमें आप कर सकते हो क्लासिफाई, वन विल बी स्टैंडिंग कमिटी एंड द अदर इज एड हॉक कमिटी। तो एड हॉक कमिटी का मतलब समझते हैं आप जब कॉलेज में होंगे, यूनिवर्सिटी में, तो देर मस्ट बी सम एड हॉक प्रोफेसर्स। आप कहते होंगे ना कि ये मैडम एड हॉक है ना, टेम्पररी है। ऑलराइट, ये सर एडहॉक बेसिस पे पढ़ाने आए हैं, मतलब दे आर नॉट परमानेंट। ओके, सो एडहॉक मतलब दे आर नॉट परमानेंट, स्टैंडिंग मतलब दे आर रिकंस्टिट्यूटेड रेगुलरली एंड दे आर परमानेंट इन नेचर। तो स्टैंडिंग कमिटीज आर परमानेंट, दे आर रिकंस्टिट्यूटेड पीरियोडिकली एंड दे वर्क कंटिन्यूअसली। ओके, एंड दे आर further categorized based on their functions into फिनेंशियल कमिटी। सो फिनेंशियल कमिटी है, उसमें तीन टाइप की कमिटीज है। एंड फिर से मैं कह रहा हूं, फिनेंशियल कमिटीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज देयर आर। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट बाय द नेचर ऑफ द वर्क दैट दे परफॉर्म, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज इन द पार्लियामेंट। सो तीन टाइप के हो जाते हैं, वन इज द पीएसी, दैट इज द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। ओके, और देन यू हैव द एस्टिमेट्स कमिटी, एंड देन यू हैव द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो तीन टाइप की कमिटीज जो है, ओके, तीन टाइप्स की कमिटी आर देयर। ऑल राइट, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। देन यू हैव डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी। याद है हमने बात की थी बजटरी प्रोसेस में, हमने बजटरी प्रोसेस में बात की थी कि ये जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी है, दे स्क्रूटिनाइज द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्लेम फॉर बजट। ओके, बजट के लिए जो पैसा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, उसको वो देखेंगे। ठीक है, देन देर आर कमिटीज टू इंक्वायर। अभी हम किस में हैं? वी आर इन स्टैंडिंग कमिटीज विच आर परमानेंट इन नेचर। सो उसी में के अंदर में हमने क्या क्या पढ़ लिया? फाइनेंशियल कमिटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी एंड कमिटीज टू इंक्वायर। सो कमिटीज टू इंक्वायर में वी हैव कमिटी ऑन पिटिशन, कमिटी ऑफ प्रिविलेज एंड एथिक्स कमिटी। ये तीन कमिटीज आ जाती है। तो एथिक्स कमिटी और कमिटी ऑफ ऑन प्रिविलेज अभी न्यूज में था क्या? अभी ये न्यूज में था क्या? यस, महुआ मोइत्रा के केस में था। यस, देन यू हैव कमिटी टू स्क्रूटिनाइज। नहीं, 24 कमिटीज जो है ये 2004 में हुआ है दोस्तों के। पहले 93 में जो है 17 से हमने स्टार्ट किया था, उसको फिर हमने बढ़ा दिया, और उसके बाद जो है हमने फिर 24 कमिटीज कर दी। ठीक है, then you have committees to scrutinize and control. So committee on government assurances, committee on subordinate legislation, याद आया? सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन हमने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में पढ़ा था, that the parliament does not have all the time in the world, so it delegates some power to the, it delegates some power to the एग्जीक्यूटिव, और फिर वहां से चेक करते हैं वेदर दैट डेलीगेटेड पावर हैज बीन यूज्ड करेक्टली और नॉट। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है। Then you have committee on papers laid on the table, committee on welfare of SC and ST, committee on empowerment of women. Then you have joint committee on offices of profit. What does joint committee means, friend? What does joint committee mean? That LS and RS will come together, okay, and form a joint committee.
Then comes committee relating to day-to-day business of the house. So business advisory committee, committee on private members bill and resolution. Then you have rules committee, then committee on absence of member from the sitting of the house. ये याद है? Do you remember this? That you will be disqualified if you are absent from the house without telling the people, okay, of your absence. Okay. So इसमें क्या है कि अगर आप लगातार एब्सेंट है, इफ यू आर एब्सेंट, यस, नहीं नहीं, बिफोर और आफ्टर 40 days दैट वाज प्रिविलेज फ्रॉम अरेस्ट, दैट वाज डिफरेंट, बिफोर और आफ्टर 40 days वाज ये एब्सेंस के बारे में हम कह रहे थे। ओके, याद आया एब्सेंस के बारे में, कि अगर आप लगातार एब्सेंट हैं हाउस से, विदाउट, ओके, विदाउट 60 days तक आप लगातार एब्सेंट है विदाउट द परमिशन फ्रॉम द हाउस, ओके, उस केस में क्या होगा, योर सीट कैन बी डिक्लेयर्ड एज वेकेंट। ओके, योर सीट कैन बी डिक्लेयर्ड एज वेकेंट। ओके, housekeeping committee is there. So there are general purpose committee, house committee, library committee। अभी library committee क्या भला है? लाइब्रेरी, पार्लियामेंट की अपनी लाइब्रेरी होती है, सो दे हैव अ लॉट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, वेरी वेरी, देयर मैन्यूस्क्रिप्ट इज the kind of collection they have, it is very very rare books। okay, so वहां पर देखा जाता है कि पार्लियामेंट में कौन कौन सी किताबें मंगवानी है। ऐसे तो आई डाउट कि कोई पढ़ता होगा आज के डेट में, पहले लोग पढ़ते थे 60s 70s में, क्योंकि पढ़े लिखे लोग आते थे। आज के डेट में अनपढ़ आते हैं तो जनरली इसका काम कम है, लेकिन पार्लियामेंट्स लाइब्रेरी इज वेरी वेरी रिच इन हिस्ट्री। उसमें बहुत सारी किताबें ऐसी हैं विच आर रेयर इन कलेक्शन। सो लाइब्रेरी कमिटी देखती है कि कौन कौन सी किताबें नहीं मंगानी है। ओके, सो एक माइनर कमिटी आप कह सकते हो। देन यू हैव जॉइंट कमिटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ओके, सो इट टॉक्स अबाउट, दिस कमिटी स्क्रूटिनाइजेस दैट वेदर जो सैलरीज एंड अलाउंसेस है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वो इनफ है कि नहीं। ओके, नॉर्मल सिटीजन कैन विजिट द लाइब्रेरी, यू नीड परमिशन फॉर दैट। ओके, आप पार्लियामेंट के अंदर भी जा सकते हैं, बट उसके लिए आपको पास वगैरह की जरूरत होती है, विच इज जनरली अरेंज्ड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, अब यहां समझ में आ रहा है कि जितने भी अभी तक मैंने बात किया, फाइनेंशियल कमिटी से लेके हाउसकीपिंग कमिटी तक, इन सब की कंटिन्यूअस जरूरत पड़ती होगी। यू रिक्वायर देम इन अ कंटिन्यूअस मैनर, दैट इज वाई दे आर स्टैंडिंग कमिटी, दैट इज वाई दे आर स्टैंडिंग कमिटी। और उसके बाद क्या है, you have the ad hoc committee। Okay, so ad hoc committee are temporary and they are established to address only specific queries or tasks, and once their assignment is complete they are dissolved। So just like your ad hoc professors, उनका जब 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता था तो वो चले जाते थे, है ना, दूसरे कॉलेज में पढ़ाने। सो उसी तरीके से एड हॉक कमिटीज जो है, दे ओनली एड्रेस द स्पेसिफिक इशू और टास्क, एंड वंस देयर असाइनमेंट इज कंप्लीटेड दे विल बी डिसॉल्व्ड। तो एड हॉक कमिटी दो टाइप की होती है, प्लीज रिमेंबर। हमने अभी स्टैंडिंग कमिटी आपको सारी बता दी। एड हॉक कमिटी में दो टाइप की होती है, एक होती है इंक्वायरी कमिटी और दूसरी होती है एडवाइजरी कमिटी। ओके, तो एडवाइजरी कमिटी को हम नॉर्मल कमिटी मानेंगे। अगर आपको याद हो, ऊपर हमने पढ़ा था, अगर एडवाइजरी कमिटी जो है वो किस लिए होती है, एडवाइस करने के लिए होती है। वो किस लिए होती है, एडवाइस करने के लिए होती है, टू मेक एडवाइसेस। ओके, दैट्स इट। एड हॉक कमिटीज आर कैटेगराइज्ड इनटू इंक्वायरी एंड एडवाइजरी। तो इंक्वायरी कमिटी क्या होती है, सो दे आर फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, रेलवे कन्वेंशन कमिटी, कमिटी ऑन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एमपी लैड्स, देन जॉइंट कमिटी ऑन सिक्योरिटी इन पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स। तो ये समझ में आ रहा है ये क्यों बना होगा, ये जो एडहॉक कमिटी है ये क्यों बनी होगी, कमिटी टू इंक्वायर। 2001, याद आया, 2001 अटैक, पार्लियामेंट अटैक, यस। देन कमिटी ऑन प्रोविजन ऑफ कंप्यूटर्स, कमिटी ऑन प्रोविजन ऑफ कंप्यूटर्स टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑफिसर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा सेक्रेटेरिएट। तो ये समझ में आया ये क्यों बना होगा। दिस वुड हैव बीन मेड इन द अर्ली 2000s, जब नया नया कंप्यूटर आया होगा, तब बन बन के खत्म, एड हॉक। ओके, एड हॉक।
Then Committee on Food Management in Parliament House Complex, and this deals with food service and management issues in the Parliament. बिरयानी 2 रुपए की मिलनी है, 3 रुपए की मिलनी है, इन सब चीजों पे डिस्कशन चलेगा. Then Committee on Installation of Portrait Statues of National Leaders and Parliamentarians in the Parliament House. किसके किसकी स्टैचू लगेगी. Then Joint Committee on Maintenance of Heritage Character of the Parliament House Complex. Committee on Violation of Protocol. So ये सारी बन के खत्म. मतलब एक स्पेसिफिक चीज के लिए बनी है, एक स्पेसिफिक चीज के लिए बनी है, खत्म. एथिक्स कमिटी इज अ परमानेंट कमिटी ना, एथिक्स तो कंटिन्यूअसली वायलेट होता है. सो कमिटी टू इंक्वायर में जो है एथिक्स कमिटी आ जाता है. ओके, ऑलराइट. ये इंक्वायर कमिटी और इंक्वायरी कमिटी डिफरेंट डिफरेंट. ओके, सो आई थिंक देर इज अ कंफ्यूजन. इंक्वायरी कमिटी है ये, और ये कमिटी टू इंक्वायर है. दिस इज डिफरेंट. Committee to inquire will be a permanent committee, or inquiry committee will be for specific tasks. Is this clear? Okay. Then we have advisory committee. So advisory committee का क्या काम होता है? Basically, ये कंसिडर करते हैं और रिपोर्ट करते हैं ऑन पर्टिकुलर बिल्स. अगेन इनका एडहॉक नेचर होता है. एंड दीज कमिटीज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर एडहॉक कमिटी एज देयर वर्क इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू स्क्रूटिनी ऑफ बिल्स. और स्क्रूटिनी ऑफ बिल करके क्या करते हैं? दे बेसिकली फॉलो द प्रोसीजर दैट इज outlined in the rules of procedure and any kind of direction that the speaker or chairman has given them. उसमें जो है उस बिल को पढ़ के और फिर अपनी एडवाइस देते हैं. And when a bill is introduced for general discussion in either house, it may be referred to a select committee or a joint committee of both the houses. अभी वक्फ बिल आया है, याद है? वक्फ बिल को इन्होंने जॉइंट कमिटी को रेफर कर दिया था. ओके, सो इस तरीके से अगर बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनरी बिल है, तो जॉइंट कमिटी को ये रेफर हो सकता है. ओके, एंड ये जो कमिटी है आपकी एडवाइजरी कमिटी, दे एग्जामिन द बिल इन डिटेल एंड कंसिडर इट क्लॉज बाय क्लॉज सिमिलर टू द प्रोसीजर फॉलोड इन द हाउस. तो एक तरीके से हाउस का काम ये बचा रहे हैं. अगर कमिटी जो है आपकी एडवाइजरी कमिटी वही पढ़ लेगी क्लॉज बाय क्लॉज, एंड इट विल टेल यू ऑल द fallacies and all the problems with the bill, so it will be easier for the individual parliamentarian to raise the issue saying that okay, this is the advisory committee's report and here is the flaw in this. Okay, and members of the committee can propose amendments, and the committee may also take evidence from association, public bodies or experts who are interested in the bill. तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर पब्लिक ओपिनियन इज ऑल्सो देयर. एक्सपर्ट से ओपिनियन ले रहे हैं ताकि पता चले कि क्या इसमें, जैसे एआई का बिल है, तो ऑब्वियसली दीज पीपल डोंट नो अबाउट दिस कि एआई में क्या प्रॉब्लम्स आती है और एआई क्या करना होता है. सो दे मे कॉल पीपल ओके हु आर वेल वर्स्ड विद द एआई, और फिर उनसे पूछेंगे कि बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है. पार्लियामेंट्री कमेटी में ऑपोजिशन मेंबर्स रहते हैं बट द पार्टी इन पावर होल्ड्स द मेजोरिटी. ऐसा नहीं है. ओके, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है. तो जनरली पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसमें बैलेंस रहता है. ओके, देर इज ए बैलेंस. एंड उसमें क्या होता है दैट इन इन लॉट ऑफ केसेस द ऑपोजिशन मेंबर्स आर आल्सो हेडिंग द कमिटी. ओके, तो इससे जो है एक बैलेंस बना रहता है ताकि जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो बेसिकली इस पे ये ना करें. ओके, दे डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ what to say, they do not do any kind of biasness. All right, yes. So after thorough consideration, the advisory committee submits its report and it includes any dissenting opinion as well on that particular bill. ठीक है, तो ये समझ में आ गया. देर आर टू काइंड्स ऑफ कमिटी. वन इज योर एडहॉक कमिटी जो कि टेम्पररी इन नेचर होता है. द अदर इज योर स्टैंडिंग कमिटी विच आर परमानेंट इन नेचर. स्टैंडिंग कमिटी में मल्टीपल टाइप्स ऑफ कमिटीज आर देयर. सो वी विल टेक अ लुक. सो सबसे पहले स्टैंडिंग कमिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी इज योर एस्टिमेट्स कमिटी. सो एस्टिमेट कमिटी जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1921. एंड ये जो है इसको कैसे बनाया गया था, 1921 में क्यों बनाया गया था? इसके पहले कुछ आया था क्या विच गेव द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट इट? 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट.
ओके, वो आया था, ठीक है। एंड एस्टिमेट कमिटी ट्रेसेस इट्स ओरिजिन बैक टू द स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमिटी, ओके, all right, established in 1921. So post independence it was constituted in 1950 upon the recommendation of John Mathai. So who was John Mathai? John Mathai was a finance minister, and initially it comprises 25 member, and its membership was then increased to 30. तो estimates committee के कितने member हैं? टोटल 30 है, और ये एक्सक्लूसिव है किसको? लोकसभा को। लोकसभा से ही मेंबर्स आते हैं यहाँ पर, एंड इट डज नॉट हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द राज्यसभा। क्यों ऐसा? बिकॉज यू नो ना, फिनेंसेस किसके हाथ में है? मनी बिल का पावर किसके हाथ में है? अप्रोप्रिएशन बिल का ओरिजिनल पावर किसके हाथ में? लोकसभा के हाथ में। ओके, इट इज इन द हैंड्स ऑफ द लोकसभा। ओके, now members are elected annually by the Lok Sabha through proportional representation by means of a single transferable vote, PRSTV, which ensures that there is representation across all parties. सो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये इंश्योर होता है कि एस्टिमेट्स कमेटी में सारे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को जो 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 भी इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स है विद इन द पार्लियामेंट उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। ओके, and please remember, ministers are not eligible to be member of the estimates committee. Estimates committee जो है उसके लिए ministers eligible नहीं है member बनने में, and the chairman is appointed by the speaker from among its member, and he is typically from the ruling party. इनका function क्या है? Report करना on possible economies, improvement in organization, efficiency and any administrative reforms, suggest any kind of alternative policies to enhance efficiency and economy in administration, examine karna effectiveness of expenditure, recommend karna format of presenting estimate to the parliament, and the committee is not responsible for public undertakings. पहले जो है पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो है इनके अंदर आ सकता था, लेकिन बाद में जो है इन्होंने क्या किया कि अलग एक कमिटी बना दी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। 1964 में 1964 में जो है देयर वाज ए बेसिकली एक कमिटी, अ सेपरेट कमिटी विच सेड की पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए एक अलग पार्लियामेंट्री कमिटी बननी चाहिए। सो एस्टिमेट्स कमिटी जो है इट कैन नॉट कंसिडर द पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इट इज कंसिडर्ड बाय अ डिफरेंट कमिटी। ओके, so committee may examine estimates throughout the financial year and report its finding progressively, and it is not required to review the entire estimates for any given year, and it can focus on selected area. तो ऐसा नहीं है कि उसको पूरा एस्टिमेट देखना है। इट कैन एस्टिमेट्स कमिटी इट कैन फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट एरिया इटसेल्फ। ओके, बट यहां पर जो है लिमिटेशन क्या है इनका? इनका लिमिटेशन ये है कि इनका रिकमेंडेशन हमेशा एडवाइजरी होता है। सो यूपीएससी के GS2 में देयर कैन बी ए क्वेश्चन कि what are the problems with these committees? The biggest problem is their post-mortem nature. The biggest problem is their advisory nature. एडवाइस देके क्या करोगे जब जो रूलिंग पार्टी है या रूलिंग मेजोरिटी है उसको अपने अपने मन की करनी है। ऑल राइट, सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद देम इज दैट इवन विदाउट देयर रिपोर्ट द वोट कैन गो ऑन। ओके, और इनका रिपोर्ट अगर एडवर्स है फिर भी द वोट कैन गो इन द डायरेक्शन ऑफ द रूलिंग पार्टी। ओके, एंड प्लीज रिमेंबर द कमिटी जो एस्टिमेट्स कमिटी है दे एग्जामिन बजट only after they have been voted on by parliament, not before, and it cannot question the policies established by the parliament, and its recommendations are advisory, not mandatory for the ministries. Is this clear? Estimates committee, and annually it examines only selected ministries, not all ministries, and this cover all entities through rotation. ऐसा नहीं है कि 1 year में मान लो कि there are 100 departments, so it will only see 10 departments, and then next year next 10 department. तो एक साल में सारे डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज कवर नहीं होंगे, एंड यहां पर इट लैक्स द एक्सपर्ट असिस्टेंस फ्रॉम द कैग। तो कैग जो है इट्स ही इज द फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ विच कमिटी? ही इज द फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ द PAC। ओके, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी में जो एस्टिमेट कमिटी से डिफरेंट है,
So estimate committee is there, then there is a public accounts committee. So public accounts committee के पास CAG का support है. They have this expertise of the CAG. The CAG helps the PAC, but there is no such support in the estimates committee. And its nature of work is considered post-mortem examination, which implies that कि इसके पास ज्यादा पावर नहीं है. अब हम बात करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमिटी. हैव यू गाइज अंडरस्टूड दिस? क्या ये आपको समझ में आ गया है? एस्टिमेट्स कमिटी समझ में आ गया है क्या? शैल वी मूव टुवर्ड्स द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी? सो ये जो एस्टिमेट्स कमिटी है, ओके, इसका आपको पता है कैग का हेल्प यहाँ पर आपको नहीं मिलता है. अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ओके, लेट मी टॉक अबाउट इट हियर. पब्लिक अकाउंट्स कमिटी भी 1921 में एस्टैब्लिश हुआ था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, एंड इट इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम. नाउ एस्टिमेट्स कमिटी और पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के मेंबरशिप में क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स? एस्टिमेट कमिटी और पब्लिक अकाउंट कमिटी के मेंबरशिप में क्या डिफरेंस है? यहां पर बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा इज देयर. ओके, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा. Okay. Whereas in estimate committee, all the member are from the Lok Sabha. Okay. So public accounts committee का जो है, the members are elected annually by parliament using proportional representation, which ensures representation from all parties. And a minister again cannot be a member of this committee. And traditionally, since 1967, the chairman of the committee is selected from the opposition. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है. हमने क्या बात की थी? एस्टिमेट्स कमिटी का चेयरमैन बाय ट्रेडिशन किस पार्टी से होता है? रूलिंग पार्टी से होता है. और पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो है, ओके, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, उसका चेयरमैन कौन रहता है? तो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का जो चेयरमैन है, ही इज फ्रॉम दी ऑपोजिशन पार्टी. ओके, सो पब्लिक अकाउंट्स जो है, उसका चेयरमैन हम क्या देखते हैं कि ऑपोजिशन वाले को बनाया जाता है. और ऑपोजिशन वाले जो होते हैं, ओके, ऑपोजिशन वाले, सो जैसे अभी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का चेयरमैन केसी वेणुगोपाल है, राइट? सो केसी वेणुगोपाल इज फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो ये ट्रेडिशन है कि एस्टिमेट्स कमिटी का जो चेयरमैनशिप है, इट विल बी इन द हैंड्स ऑफ द पार्टी विच इज रूलिंग, एंड पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जो है, उसका विल बी इन द हैंड्स ऑफ ऑपोजिशन. ओके, और इसमें 15 मेंबर होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से. एंड फंक्शन इसका क्या है? The PSC is tasked with examine the annual audit report submitted by the CAG. अब समझ में आया why the CAG is involved with the PSC and not the estimates committee. So PSC जो है, उसके साथ आपका CAG होता है इन्वॉल्व. तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका MCQ. दिस कैन बी अ वेरी वेल MCQ, क्योंकि यूपीएससी हैज आस्क्ड थ्राइस, 3 बार उसने पिछले 10-15 साल में कमिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ चुका है. ओके, सो पीएससी और कैग जो है, बेसिकली यहाँ कैग का रिपोर्ट को वो देखता है, जो भी एनुअल ऑडिट रिपोर्ट है. और इसमें क्या क्या रिपोर्ट्स होते हैं? कैग के 3 रिपोर्ट्स होते हैं. द ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, द ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, एंड द ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. तो यहां पर कैग जो है, इट सीज की अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, फिनेंस अकाउंट से और पब्लिक अंडरटेकिंग में कोई धांधली तो नहीं हुई है, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है. ऑल दीज थिंग्स आर सीन बाय द कैग, एंड देन इट पब्लिशेस इट्स रिपोर्ट्स which is taken by the PSC, and that is why the CAG is in touch with the PSC. और इसका काम क्या होता है? बेसिकली देखना, पब्लिक एक्सपेंडिचर को स्क्रूटनाइज करना, नॉट जस्ट फॉर लीगैलिटी बट ऑल्सो फॉर इकोनॉमी एंड प्रूडेंस. अभी यहां पर रिसेंटली कोई केस हुआ था क्या, दैट यू गाइज रिमेंबर? एनी केस दैट यू गाइज रिमेंबर? देयर वाज अ केस ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे. तो द्वारका एक्सप्रेसवे क्या था? इनिशियली उसका कॉस्ट कुछ 150 करोड़ कहा गया था, एंड देन इट हैड बलून्ड टू 3000 करोड़, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स. ओके, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स जो है, इसका कॉस्ट बलून कर गया था. तो उसको जो है कैग के रिपोर्ट में फ्लैग किया गया था, दैट ओके, हाउ कैन दिस बी द केस, हाउ कैन दिस बी द केस. ऑल राइट. So detailed function includes examining the government's appropriation and finance accounts,
and comparing actual expenditure against the sanctioned expenditure by the parliament, ensuring legal availability of funds for expenditure. और यहां पर सिर्फ ये काम नहीं है कि लीगैलिटी देखना, ये अच्छा मैंने जो पैसा निकाला है दैट इज लीगल, नो, यू हैव टू ऑल्सो सी वेदर इट इज प्रूडेंट और नॉट. You are, if you are spending 3,000 crore rupee for a task which would have required 150 crore, it might be legal, but is this prudent? तो ये सारी चीजें चेक करते हैं. उसके बाद स्टेट कॉरपोरेशंस का अकाउंट, ट्रेडिंग कंसर्न्स, एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग, ये सारी चीजें जो है ये देखते हैं. लेकिन दे डू नॉट टॉक अबाउट द issues taken up by the Committee on Public Undertaking, that is different. And then they also review the accounts of autonomous and semi-autonomous bodies, which is audited by the CAG. They also consider CAG reports on any receipt or examination of accounts of stores and stocks. And CAG क्या करता है यहाँ पर? CAG जो है उनको पब्लिक अकाउंट्स कमिटी को सपोर्ट करता है, and it acts as the guide, friend, and philosopher of the Public Accounts Committee. All right. बस प्रॉब्लम इसके पास वही है, इसकी इफेक्टिवनेस लिमिटेड है. व्हाई? बिकॉज पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करता है ये, एंड ये इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है. इट कैन नॉट इशू ऑर्डर्स और समन्स, एंड इट कैन नॉट, ओके, बेसिकली इट कैन नॉट, डज नॉट हैव द एग्जीक्यूटिव पावर कि किसी को समन करके और उसको जेल में डाल सके. इट कैन ओनली डू पोस्टमार्टम. तो उसमें जो भी समनिंग का प्रोसेस होगा कि आके आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने अपनी बात रखें, तो क्या वहां पर जो समनिंग होगा उसमें वो, अगर इफ दे फाइंड सम इरेगुलरिटी, वुड दे बी एबल टू पनिश द गाय? तो द आंसर इज नो. इनके पास कोई भी किसी भी ढंग का एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होता है. पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात कर रहे हैं. अब हम तीसरे कमिटी पे आते हैं. दिस इज कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. तो ये जो कमिटी है, it was established following the recommendations of the Krishna Menon Committee in 1964. So ये याद रखिएगा. एंड इनिशियली इसमें जो है 15 मेंबर्स थे, बाद में 22 मेंबर्स कर दिए गए. सो 22 मेंबर्स, 15 आर ड्रॉन फ्रॉम द एलएस एंड 7 आर ड्रॉन फ्रॉम द आरएस. ओके. And members are elected annually by parliament using the same proportional representation, so that representation across all parties is maintained. And ministers are again not eligible to be members, so that they could not sway the decisions and the working of the committee. And the chairman of the committee is appointed by the speaker from among its members. Okay. सो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का काम क्या है? एग्जामिन करना है रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग. जो कैग का रिपोर्ट होता है पब्लिक अंडरटेकिंग पे, उसको रिव्यू करते हैं ये. एंड दे असेस द मैनेजमेंट ऑफ पीएसयूज. पीएसयूज मतलब क्या होता है फ्रेंड? पीएसयूज का माने कोल इंडिया, ओएनजीसी. ओके. देन सेल, भेल, हाल, all these things. Okay. And they perform any other function related to public undertaking that the PAC and the estimate committee are responsible for, but is delegated to them by the speaker. मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि आप अगर देखेंगे that speaker has allotted some work, so the committee on public undertaking, it can take it, even though it might be there for PAC and estimate committee. लेकिन अगर डेलीगेट हो जाए बाय द स्पीकर, स्पीकर साहब कह दे कि जो पीएसी या एस्टिमेट कमिटी का काम है वो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ड्यू टू सम ओवरलैप नेचर देख सकता है, तो दे कैन ऑल्सो सी दैट दिस. ओके. So they talk, okay, they do not talk about the day-to-day administration matters of the PSUs. They cannot talk about the major government policies. Okay. And they cannot talk about the issues that are addressed by statutory mechanism. All right. So they can only do post-mortem. और इनका प्रॉब्लम क्या है? ये सिर्फ 10 से 12 एंटिटीज पर ईयर देख सकते हैं. 10 to 12 PSUs, they do not have the supervisory role among all the PSUs. Every year इनका कैपेसिटी डिक्टेट करता है, they can only see 10 to 12. Okay.
सो इट्स अप्रोच इज डिस्क्राइब्ड एज पोस्टमार्टम। तो हमने तीनों में यही प्रॉब्लम देखी, एस्टिमेट कमिटी, पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एंड देन कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ऑल ऑफ देम आर पोस्टमार्टम। एंड देर इज अ लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, सो दे डू नॉट गो इन टू द डिटेल। अब जैसे ओएनजीसी ने ये ड्रिलिंग मशीन इतने में क्यों खरीदी, तो क्या ये बता सकते हैं parliamentarians, can they give a conclusive answer that why did the ONGC bought this offshore drilling machine from Germany, or why the Coal India they hired Australian people to dig coal? तो इस टाइप की चीजें जो है they are not basically well versed with, so they cannot give their technical expertise, they cannot give a technical answer to the questions. तो ये आपका जो है, दिस इज योर फिनेंशियल कमिटीज जो फिनेंसेस को देखता है। उसमें तीन कमिटीज आ गए, एस्टिमेट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी एंड द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, याद रखिएगा। इसमें से एस्टिमेट्स कमिटी के कितने मेंबर्स हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द एस्टिमेट कमिटीज? 30। हमने बात की थी ना, पहले 25 थे फिर 30 कर दिए गए। 30 में से 30 कहाँ से आते हैं? लोकसभा से। फिर हम बात करते हैं पीएससी के बारे में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, बोथ लोकसभा राज्यसभा, 15+7 का स्प्लिट हमें देखने को मिलता है। और पीएससी का फ्रेंड कौन होता है, हु इज द फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ द पीएससी? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इट इज द कैग, इट इज व्हाट, इट इज द कैग। ओके, ऑलराइट। स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म वाला पॉइंट यहां पर मैं फिर से समझाता हूं। जैसे कोई पीएसयू का काम है विच इज टू बी एड्रेस्ड वाया सम लॉ, उसके लिए लॉ हमेशा से प्रेजेंट है। ओके, सम लॉ इज प्रेजेंट ऑलरेडी। सो उस केस में हम क्या देखते हैं, इन दैट केस दैट दिस कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कैन नॉट डिस्कस दैट। वाई? बिकॉज अनदर स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म इज देयर विच इज, और सम लॉ इज देयर विच विल एड्रेस दैट इशू। आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके, इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी के बारे में, विच आर द डीआरएससीज। सो डीआरएससीज जो है 1993 में एस्टैब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रूल्स कमिटी ऑफ द लोकसभा। ओके, एंड इनिशियली इसमें 17 कमिटीज है, एंड दिस नंबर वाज increased to 24 in 2004, and these committees they are set up to enhance the accountability of the executive to the parliament, and particularly in terms of financial accountability। तो budgetary process सुबह पढ़ा था, याद है? We read about the budgetary process in the morning. So this DRSC, they are very integral to the budgetary process। ओके, तो इसके बाद जो है आपको पता होगा 3 to 4 weeks के लिए, आफ्टर द 3 to 4 days of discussion, after the presentation of budget, when the discussion gets over, the house adjourns for 3 to 4 weeks, and then the DRSCs, okay, they basically यहां पर जो है अपना काम करते हैं। और हर डीआरएससी में 31 मेंबर्स होते हैं, 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम द राज्यसभा, एंड दे आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर एंड द चेयरमैन रिस्पेक्टिवली। सो जो 21 मेंबर आएंगे लोकसभा के, वो स्पीकर साहब नॉमिनेट करेंगे, और चेयरमैन साहब जो हैं वो बेसिकली जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं 10, उनको नॉमिनेट करेंगे। ओके, क्या ये चीज क्लियर है? सो सर्टेन डीआरएससीज जो है, ओके, certain DRSCs, they are there, okay, they are there for certain departments। जैसे 24 DRSCs are there in total। तो अब जैसे केमिकल फर्टिलाइजर, कोल माइंस, डिफेंस का अपना डीआरएससी है, एक्सटर्नल अफेयर्स का अपना है, फिनेंस का अपना है, कंज्यूमर अफेयर्स का अपना है, लेबर टेक्सटाइल का अपना है, रेलवेज का अपना है, सोशल जस्टिस का अपना है, वाटर रिसोर्सेज का, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, सभी का जो है कमिटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी अपना है। तो यू कैन से that almost all the ministry has a DRSC associated with them, and if any ministry does not have a direct DRSC connection, तो उस केस में क्या होता है, it is clubbed with another DRSC। okay, so ministers are not eligible for nomination to any DRSCs, and membership ceases if a member is appointed as a minister। मतलब आप अगर डीआरएससी के मेंबर हैं और आप बाद में आपको मिनिस्टर बना दिया गया, तो आपका मेंबरशिप डीआरएससी से खत्म हो जाएगा। ओके, एंड द टर्म ऑफ ईच डीआरएससी इज 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन।
And the 24 DRSCs are distributed under the Rajya Sabha, that is 8, and Lok Sabha 16. So 16 DRSCs out of the 24 are under the control of Lok Sabha, and 8 of them are under the control of Rajya Sabha. And DRSCs, they examine the demand for grants of the concerned ministries or department before discussion and voting in the Lok Sabha, and they examine bills related to the concerned ministries and department, and they consider annual reports of the ministries and departments. They consider national basic long term policy documents as well. तो बेसिकली इसका काम भी क्या पोस्टमार्टम है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, मोर और लेस. ये जो है दे डू नॉट हैव मच पावर, दे डू नॉट हैव मच पावर, रिकमेंडेटरी रोल है. And DRSCs, they do not deal with the day-to-day administrative matters. They avoid matters which are under consideration by other parliamentary committee. For example, if the estimate committee is looking into something, so DRSC will not look into that. If the estimate committee is looking, let us say, into some particular thing, then the DRSC is not going to look into that particular matter. All right. And their recommendation are again advisory, and it is not binding on the parliament. क्या है ये? Advisory है, binding नहीं है. And after general budget discussion, the House adjourns for a fixed period for DRSC to consider the demands for grants, and the DRSCs, they report their findings, and then these reports influence subsequent decision and decisions on डिमांड्स फॉर ग्रांट. तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कुछ इन्फ्लुएंस है इनका, लेकिन अगेन बिकॉज देयर रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग, तो मोर और लेस इनका भी जो काम है ये पोस्टमार्टम की तरह ही हुआ. वाई? बिकॉज इफ दे फाइंड एनी प्रॉब्लम्स, द DRSCs इन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, तो क्या कुछ हो सकता है? बिकॉज द गवर्नमेंट, ओके, इफ इट इज नॉट एन इनोसेंट मिस्टेक, अगर गवर्नमेंट चाह रही है तो गवर्नमेंट विल ऑलवेज हैव द मेजोरिटी ना, गवर्नमेंट इज गोइंग टू हैव द मेजोरिटी. सो वहां पर अगर आप मोशंस भी लेके आएंगे, टोकन कट, पॉलिसी कट वगैरह, तो प्रॉब्लम है, पास ही नहीं होगा. ओके, इट विल नॉट गेट पास्ड. So DRSCs, they have made the parliamentary control over the executive more detailed, continuous, in-depth and comprehensive, and this has enhanced the effectiveness of public expenditure scrutiny. Okay. And they provide a platform for informed parliamentary debate, and this facilitate the involvement of all MPs. अब आप एक चीज देखिएगा, 31 members are there, 24, एक तरीके से 24, how to say this, 24 DRSCs, 31 members. So can I say that everybody will have a chance to become a member of a DRSC? All the parliamentarians at least will have a chance to become member of at least one DRSC if we exclude the ministers. Yes. तो इस तरीके से क्या है, MPs का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है इन द स्क्रूटिनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव. देन वी हैव द कमिटी टू इंक्वायर. तो इसमें कमिटी, उसके अलग अलग टॉपिक्स आप देखेंगे उसमें. तो कमिटी टू इंक्वायर का पहला जो फॉर्म है, दिस इज कमिटी ऑन पिटिशन. एंड कमिटी ऑन पिटिशन, इट एग्जामिन्स पिटिशन रिलेटेड टू बिल्स and matters of general public importance, and it also reviews representation from individuals and associations concerning union subjects. तो कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है, जिनको हम आज के डेट में RTI एक्टिविस्ट टाइप के जो लोग हो जाते हैं, यू नो, हु हैव फाउंड सम इशू with the governance, तो ये committee on petitions, they meet with these people and they meet with the civil society groups और उनकी बातें सुनते हैं. And the Lok Sabha's committee on petition comprises 15 members, whereas the Rajya Sabha's version includes 10 members. Okay, so 15 member होते हैं लोक सभा में committee on petition में, राज्य सभा में 10 member होते हैं. Then you have committee of privilege. So the committee possesses semi judicial power. तो ये important चीज है, that the committee of privilege जो है वहां पर सेमी जुडिशियल पावर होता है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिनिंग केसेस इन्वॉल्विंग ब्रीचेस ऑफ privilege of the house and its members.
एंड इट रिकमेंड सूटेबल एक्शन टू एड्रेस दीज ब्रीचेस। हमने पढ़ा था, याद है आपको, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वाले क्लास में वी हैड रेड अबाउट दिस, दैट ओके, ये या तो आप जो है इनको एडमोनिश कर सकते हैं, इवन जो है आपके पास सेमी जुडिशियल पावर है, तो ये सारा जो है इनको रेकमेंड भी कर सकते हैं इनके अगेंस्ट एक्शंस। सो द लोक समाज कमिटी ऑफ प्रिविलेज कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, राज्यसभा कमिटी इंक्लूड्स 10 मेंबर्स। फिर एथिक्स कमिटी आता है। एथिक्स कमिटी इज अ वेरी वेरी रिसेंट फेनोमेना, and ethics committee was established in the Rajya Sabha in 97, and then Lok Sabha में थोड़ा सा लेट आया था, 2000 में आया था। And its main role is to enforce the code of conduct for parliament members, examining misconduct cases and recommending appropriate disciplinary actions. And this committee plays a crucial role in maintaining discipline and decorum within the parliament। तो पार्लियामेंट के अंदर जो है डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन रहे, उसके लिए एथिक्स कमिटी काम करती है। बोथ लोकसभा राज्यसभा एथिक्स कमिटी हैव 15 एंड 10 मेंबर्स। 15 मेंबर्स फॉर लोकसभा, 10 मेंबर्स फॉर राज्यसभा। देन यू हैव कमिटी टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। सो देयर इज अ कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस। सो इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है एग्जामिन करना अश्योरेंसेस, प्रोमिसेस एंड अंडरटेकिंग्स विच आर मेड बाय मिनिस्टर्स। तो आप समझे, ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर रहा है कि क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिविजुअल मिनिस्टर की, वेदर दे हैव मेड अ प्रॉमिस। सो प्रॉमिस का ब्रेकिंग भी जो है, इट इज अ वेरी सीरियस मैटर। इफ द मिनिस्टर हैज सेड दैट ओके आई विल डू दिस, तो फिर जो है ये कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस चेक करती है वेदर दैट अश्योरेंस और द प्रोमिसेस दे हैव बीन केप्ट और नॉट। 15 मेंबर्स इन लोकसभा, 10 मेंबर्स इन राज्यसभा। लेकिन कुछ कर सकती है क्या ये? इसका रोल क्या रहता है? क्या ये मिनिस्टर्स को रिमूव करवा सकती है? सो डायरेक्टली नहीं करा सकती है। ओके, इट्स इट्स रिकमेंडेटरी रोल है। रिकमेंड कर सकती है दैट एक्स वाई जेड मिनिस्टर हैज ब्रोकन हिज प्रॉमिस, दैट्स इट। देन यू हैव कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो मैंने आपको बताया था दैट देयर आर सर्टेन पावर्स विच आर डेलीगेटेड टू द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के पास जो है पावर, जो बेसिकली देखी जाती है कि पार्लियामेंट हैज very limited time, and that is why it cannot make all the rules and bylaws। तो उसके लिए जो है वो एग्जीक्यूटिव पे ट्रस्ट करके उसको पावर दे देती है। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, द पार्लियामेंट चेक्स वेदर दिस डेलीगेटेड पावर हैज बीन यूज्ड जुडिशियसली और नॉट। ओके, सो 15 members in the Lok Sabha and Rajya Sabha established in 1953। तो 1953 जो है उसमें ये एस्टैब्लिश किया गया था। और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है, इट इज प्रेजेंट, ओके, इट इज प्रेजेंट इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। और ये करता क्या? ये बेसिकली देखता है वेदर द पावर, ओके, वेदर द पावर has been used judiciously or not। और 15 मेंबर बोथ इन लोकसभा राज्यसभा रहते हैं। सो विच इज डिफरेंट। पहले क्या हमने पढ़ा था? जनरली 15 मेंबर्स एंड 10 मेंबर्स की बात करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन दोनों जगह 15 मेंबर्स होते हैं। और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वाज ए PYQ 2018 का ये क्वेश्चन था ये। ओके, then comes committee on papers laid on the table। So this basically review all the papers which are laid on the table of the house by the ministers for compliance with the constitution and the act rule they are made under। It excludes statutory notification and orders under the purview of the committee on subordinate legislation। So basically whatever is being considered by the committee on subordinate legislation, इस वाली कमिटी ने जो जिस जिस चीज को ले रखा है उसको ये कंसिडर नहीं करता है। कमिटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल जो है वो उसको कंसिडर नहीं करता है। कॉम्पोजिशन कितना होता है? 15 मेंबर्स आर देयर इन द लोकसभा, 10 मेंबर्स आर देयर इन द राज्यसभा, एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1975। देन यू हैव कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ SCs एंड ST। इसका पर्पस क्या होता है? टू एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ NCSC एंड NCST। तो क्या NCSC NCST एक ही है या अलग अलग है? NCSC और या NCST एक ही ऑर्गेनाइजेशन है या अलग अलग है? अलग है। क्या पहले एक थे या अलग थे? स्टार्टिंग से अलग है या पहले एक थे? अर्लियर दे वेर वन, उसके बाद जो है उनको अलग अलग कर दिया गया। तो अब जो है NCSC
and NCST जो है, they are different. Okay, so they examine the report of National Commission for SCs and STs and matters related to the welfare of these communities, including constitutional and statutory safeguards and the effectiveness of welfare programs for the SCs and ST. And 30 members are there, 20 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha. Then you have Committee on Empowerment of Women. So they basically review the report of National Commission for Women. Is this a constitutional body? National Commission for Women? It is not. It is a statutory body. Okay. It is a statutory body. Yes. So basically, they assess the measure taken by the union government to ensure women's status, dignity, and equality is maintained in all fields. 30 members की composition हुई थी, 20 from Lok Sabha, 10 from Rajya Sabha, established in 1997. And then you have the Joint Committee on Office of Profit. Basically ये scrutinize करता है whether okay सेंट्रल स्टेट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी आप कह सकते हो पोजीशंस है, क्या वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है? बिकॉज इफ यू गाइज नो, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दे कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ओके, सो परव्यू के बाहर होना चाहिए. वट एवर कमिटी दे आर ऑन, वट एवर पोजिशन दे आर होल्डिंग इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, वहां से जो है बाहर होना चाहिए. इज दिस क्लियर? Composition 15 members, 10 from Lok Sabha, 5 from Rajya Sabha. Then you have committees relating to day-to-day business of the house. So उसमें जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी आती है. सो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का क्या काम है? बेसिकली रेगुलेट करना प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउस, allocating time for legislative and other businesses initiated by the government. सो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये बेसिकली बताता है कि कैसे हाउस स्टार्ट होगा, कब हाउस को एडजर्न करना चाहिए. तो एक तरीके से रिकमेंडेशंस देता है कि क्या क्या प्रोग्राम और टाइम टेबल हाउस को फॉलो करना चाहिए. और लोकसभा के 15 मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग द स्पीकर एज द चेयरमैन. तो स्पीकर साहब का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. जो प्रोसीजर है, बिजनेस है हाउस का, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. तो जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें स्पीकर साहब चेयरमैन होते हैं. और राज्यसभा में चेयरमैन जो है, जो कि ऑब्वियसली विच इज द एक्स ऑफिशियो पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ही इज द चेयरमैन विद अलोंग विद 11 मेंबर्स. ओके, सो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम ये होता है, विच इज ऑब्वियसली गाइडेड बाय द स्पीकर. सो इस केस में क्या होता है, स्पीकर साहब और उनके जो 15 मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कैसे चलेगा काम. ओके, कैसे जो है चलेगा काम इसका, जो आपके हाउस है, रिस्पेक्टिव हाउस का. फिर चेयरमैन साहब भी बैठते हैं उसमें, और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं. और बेसिकली ही ऑल्सो टॉक्स की हाउ द राज्यसभा विल फंक्शन. ओके, सो स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी. और ये जो है प्लान करता है और शेड्यूल करता है एनी काइंड ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस. देन यू हैव कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशन. सो ये इसका पर्पस क्या है? नॉन मिनिस्टर एमपीज जो होते हैं उनके वो जो बिल प्रेजेंट करते हैं या रेजोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं, उस पे उसके लिए दे क्लासिफाई द टाइम. ओके, कि इस टाइम में जो है आप प्राइवेट मेंबर का रेजोल्यूशन या बिल्स देख सकते हैं. क्या इसकी प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है? सुबह एब्सोल्यूट वीटो में भी हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर. एब्सोल्यूट वीटो में भी जो है ज्यादा हो सकता है. और यहां पर जो है प्राइवेट मेंबर्स की प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं होती है. 30 डेज का एक तो आपको देना पड़ता है, याद है? ऑफिशियल जो गवर्नमेंट बिल है, इट हैज 7 डेज नोटिस पीरियड. एंड दिस प्राइवेट मेंबर्स बिल हैज 30 डेज नोटिस पीरियड. इट कैन बी प्रेजेंटेड ओनली on the allotted day. Plus this is subjected to, private member bill is subjected to absolute veto, whereas the government bill is not in normal circumstances. Okay, सो कॉम्पोजिशन क्या होता है? लोकसभा 15 मेंबर्स इंक्लूडिंग द डेप्यूटी स्पीकर एज चेयरमैन. हमने डेप्यूटी स्पीकर के बारे में ये पढ़ा था कि डेप्यूटी स्पीकर वेन एवर ही गोज टू ए कमिटी ही ऑटोमेटिकली बिकम्स द चेयरमैन. एंड राज्यसभा डज नॉट हैव ए सेपरेट कमिटी फॉर कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशन. बट जो राज्यसभा का बिजनेस एडवाइजरी कमिटी होता है, विच इज हेडेड बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ओके, सो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ही ये काम करती है. लोकसभा में अलग से एक प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशन है. वाई?
डू यू अंडरस्टैंड? प्राइवेट मेंबर बिल्स तो चलिए दोनों जगह ला सकते हैं, लेकिन रेजोल्यूशंस जो है मेजरली कहां पर आ सकता है? लोकसभा में। तो लोकसभा, इट मेक सेंस फॉर लोकसभा टू हैव ए सेपरेट कमिटी फॉर रेजोल्यूशन। याद है नो कॉन्फिडेंस मोशन की जब हम बात करते हैं, या जितने भी बजटरी जो कट मोशंस वगैरह की बात करते हैं, जितनी भी रेजोल्यूशंस की हम बात करते हैं, सो उस केस में प्राइवेट मेंबर जो है उसका ज्यादा स्कोप कहाँ रहता है? लोकसभा में रहता है कि नहीं? लोकसभा में ज्यादा स्कोप रहता है। एंड देन वी हैव रूल्स कमिटी। सो रूल्स कमिटी बेसिकली ये जो है, दे कंसिडर मैटर रिलेटेड टू प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन द हाउस, एंड दे रिकमेंड अमेंडमेंट और एडिशन टू द हाउस रूल्स। ओके। एंड यहाँ रूल्स कमिटी दोनों जगह होता है। रूल्स कमिटी जो है दोनों जगह होता है, ये आपका लोकसभा में भी होता है और आपका राज्यसभा में भी होता है। क्लियर है? ऑलराइट। ओके। एनी क्वेश्चन स्टिल हेयर? ये देखिए थोड़ा सा बोरिंग है, मैं समझता हूँ। ओके, आई अंडरस्टैंड इट्स अ बिट बोरिंग, थोड़ा सा इसमें फैक्ट्स ज्यादा है, समझना कम है, लेकिन क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन जो है इसमें आ सकते हैं। देन कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सिटिंग ऑफ द हाउस। सो ये बेसिकली देखता है, इट एग्जामिन्स द एप्लीकेशन फ्रॉम मेंबर फॉर लीव ऑफ एब्सेंस, एंड इन केसेस ऑफ मेंबर्स हु आर एब्सेंट फ्रॉम फॉर 60 days और मोर विदाउट परमिशन, क्या उनके सीट्स को वेकेंट बोलना है या नहीं? ओके। लोकसभा स्पेशल कमिटी ऑफ 15 मेंबर इज देयर। राज्यसभा डज नॉट हैव ए कॉरेस्पॉन्डिंग कमिटी, and such matters are addressed by the Rajya Sabha itself, whereas in Lok Sabha there is a specialized committee. वक्फ में एक क्वेश्चन है, वक्फ में मैं ही देख रहा था दैट इवन आफ्टर पार्लियामेंट्री पैनल क्लियर्स रिपोर्ट्स ऑन वक्फ बिल ऑपोजिशन करके ही पास हुआ था, देन व्हाई? जरूरी नहीं है। अगर वक्फ बिल जो है स्क्रूटनाइज हुआ था, तो द ऑपोजिशन मेंबर्स दे कैन फील दैट द कमिटी वेयर दैट बिल हैज बीन स्क्रूटनाइज, इट इज डोमिनेटेड बाय द majority party or the party in power. So that is why they are showing their dissent even in the later stages as well. अब हम बात करते हैं हाउस कीपिंग कमिटी के बारे में। सो there is a general purpose committee, and it advises on matters concerning the affairs of the house which is not covered by any other parliamentary committee. कोई भी ऐसा मैटर है which is not covered by any other parliamentary committee, it comes under general purpose committee. एंड इसमें जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर साहब रहते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, डेप्यूटी स्पीकर, मेंबर्स ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन एंड चेयरपर्सन ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी, लीडर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज एंड ग्रुप्स, और ये सारे जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। देन यू हैव हाउस कमिटी, एंड दे मैनेज रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एंड एमिनिटीज लाइक फूड, मेडिकल एड फॉर मेंबर्स इन दिल्ली। सो हाउस कमिटी का काम क्या होता है? बेसिकली फैसिलिटेट करना जो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन है, तो सभी को कुछ ना कुछ मिल जाए। आई थिंक देयर वाज द केस ऑफ राघव चड्डा। सो राघव चड्डा वाज अ जूनियर एमपी, अ फर्स्ट टाइम एमपी फ्रॉम पंजाब। सो ही हैड सॉट ए टाइप 7 क्वार्टर। तो टाइप 7 और टाइप 8 क्वार्टर क्या होता है? बेसिकली टाइप 8 क्वार्टर नहीं, ही हैज सॉट टाइप 8 क्वार्टर। तो टाइप 8 क्वार्टर इज ए स्टैंड अलोन हाउस, जो कि सेक्रेटरी लेवल रैंक के ऑफिसर्स को मिलता है। और टाइप 8 क्वार्टर्स जो होता है जनरली सीनियर पार्लियामेंटेरियंस को दिया जाता है। प्रॉब्लम क्या है दिल्ली के साथ? लिमिटेड सप्लाई इज देयर। इन दिल्ली देयर इज लिमिटेड सप्लाई ऑफ दीज काइंड्स ऑफ स्टैंड अलोन हाउसेस। सो देन राघव चड्डा was allotted by the हाउस कमिटी। हाउस कमिटी ने इनको हेल्प किया अ टाइप 6 क्वार्टर, जो कि मिड लेवल आईएएस ऑफिसर्स को दिया जाता है। सो उसमें जो है बेसिकली 4 बेडरूम्स एंड 3 बाथरूम वगैरह होता है, और एक सर्वेंट क्वार्टर होता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी सिक्योरिटी के लिए मुझे बड़ा घर चाहिए। राघव चड्डा इज बेसिकली सेड कि मेरी सिक्योरिटी मांग रही है कि बड़ा घर होगा तब हम सिक्योरिटी दे पाएंगे आपको, ऐसे अपार्टमेंट में अगर आप मुझे रखेंगे तो मेरे पास नहीं रहेगा। देन ओके, बहुत ज्यादा कलेश हुआ था इस चीज के वजह से। सो लोकसभा में 12 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं। Then you have library committee. So it deals with matters related to Parliament's library and assist members in utilizing library services. Composition 9 members का होता है, 6 फ्रॉम लोकसभा, 3 फ्रॉम राज्यसभा इज देयर। कौन सी नई किताब आएगी लाइब्रेरी में, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं।
Then you have Joint Committee on Salaries and Allowances of members of parliament. So they basically regulates the payment of salary, allowances and pension to the member of parliament under the Salary Allowances and Pension of Member of Parliament Act 1954. तो ये जो है बेसिकली इंश्योर करते हैं कि सारे पार्लियामेंटेरियंस को उनकी सैलरी और अलाउंसेस जो है वो समय पे मिल जाए. सो देर आर 15 मेंबर्स, 10 आर फ्रॉम लोकसभा, 5 आर फ्रॉम राज्यसभा. There is a question, then we can say parliamentary committee created to discuss matters important to ruling parties will have a majority of ruling parties members unofficially. Yes. अगर आप PRSTV से इलेक्शन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इन सर्टेन कमिटीज देयर आर इलेक्शंस वाया PRSTV, तो बाई बट नेचुरल कहाँ से क्वेश्चन, कहाँ से ज्यादा मेंबर्स आएंगे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, तो बट नेचुरल कहाँ से ज्यादा मेंबर्स आएंगे? रूलिंग पार्टी से आएंगे कि नहीं आएंगे? रूलिंग पार्टी से ज्यादा मेंबर्स आएंगे. यस. तो इसीलिए जो है यहां पर देर इज दिस इशू. ओके, देर इज दिस इशू. ओके, चलिए, आई थिंक दिस इज डन. पार्लियामेंट्री कमिटी. हाँ, मैं बता देता हूँ. देखिए, कमिटी जो आप कह रहे हैं ना, उसमें एक डिफरेंस है, वो आप देखेंगे तो यहां पर ध्यान से देखिए. कमिटीज टू इंक्वायर, इट इज टू इंक्वायर इनटू द परमानेंट नेचर ऑफ द हाउस. जैसे एथिक्स हमेशा टूटते रहता है ना, प्रिविलेज इज कंटिन्यूअस, एथिक्स हमेशा इट हैज टू बी अपहेल्ड कंटिन्यूअसली, पिटिशंस हमेशा आते रहते हैं. तो ये परमानेंट कमिटी है. दिस इज ए स्टैंडिंग कमिटी. ओके. और कमिटी टू इंक्वायर इज वन थिंग and inquiry committee is another thing. Inquiry committee is for specific issues. This is for specific issues. Okay, so ad hoc में आ जाता है. Did you understand the difference? Okay, any doubts that you guys have in the parliamentary committee? Yes, functioning overlaps can always be there. Okay, functioning overlaps can be there, but it is generally we try to avoid it. अवॉइडेंस होता है ताकि ओवरलैप ना हो, बट इट इज पॉसिबल दैट ओवरलैपिंग कैन बी देयर. जैसे हमने अभी पढ़ा था ना कि कैसे PAC जो है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, इट ट्राइज टू अवॉइड ओवरलैप विद द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, एंड द पब्लिक अंडरटेकिंग ट्राइज टू अवॉइड ओवरलैप विद द PAC. सो उसी तरीके से ओवरलैप इज वेरी मच पॉसिबल, बट उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जो है हम अवॉइड करते हैं. जो पार्लियामेंट्री कमिटीज है, दे ट्राई टू अवॉइड इट. ओके.